His name will be called John, and many will rejoice at his birth. Good evening and hearty welcome to all of you. I extend my feast day wishes to all. Dear Right Reverend Bishop Patras Minch, Father Gabriel, our parish priest, fathers, brothers from Mount Court community, and my loving sisters. I take pleasure in welcoming you all for this day of joyful celebration of birthday of our patron St. John the Baptist. God had called great prophets to foretell the coming of his son. John the Baptist was called the prophet of Most High. He felt Jesus' presence and lived in joy in his mother's womb. The spirit and power of Elijah was with him. John searched in solitude for Christ and knew him before his birth. He showed in his life what he preached by his words. He indicated Jesus to the world as Messiah and Lamb of God. He stood for truth and justice, even to give up his life. A spirit-filled prophet, a joyful babe, a miraculous child, the voice of wilderness, a man of austerity, the Jordan's baptizer, the forerunner of Christ, the humble servant, the martyr of truth. Dear friends in Christ, Eucharistic celebration is a celebration of God's love. It is an expression of our gratitude. It remains as meeting point of God and human. God has very purposeful plan in creating us and calling us to follow him as religions. We sisters have our patron St. John the Baptist, whose countless blessings and powerful protection is continually felt in our community and in our province. At this moment, our hearts throbs with joy to thank the Lord for his abundance of blessings on our community, school, hostel, and parish. As we are committed to our own particular order or congregation, let us imbibe the values of our great saint, his humility and courage to stand for truth and justice and to witness Christ by our consecrated life. Let us submit in his mighty hands all our personal and common intentions. In a special manner, on behalf of our Anugrah sisters, I request you all to pray for us and our mission here. Let us have strong faith and be sure that God's fatherly blessings and support always will be there for our mission and to witness him by our presence and service in Ambikapur Diocese. With this intention in our hearts and feelings, I invite you to participate in our evening Eucharistic fellowship. ईश्वर ने एक मनुष्य को भेजा जिनका नाम योहन था। वे ज्योति के प्रति साक्षी देने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने आए थे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सामंजस्य आप सबों को प्राप्त हो। अति प्यारे फादरगण, ब्रदरगण, धर्म भरने और आप जो अपने अपने घरों में, परिवारों में और पारिवारिक वेदी के सामने संगठित हैं, अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज और इस समय हम लोग, आज जो कि 24 जून है और संत जॉन बाप्टिस्टा का जन्म दिवस है, हम लोग संत जॉन बैप्टिस्ट सिस्टर सबके कॉन्वेंट के इसी
ईश मंदिर में, छोटे ईश मंदिर में एकत्रित हुए हैं और इस पूजा बलिदान को इन धर्म बहनों के विशेष मतलबों के लिए भी हम लोग आज इस समय चढ़ा रहे हैं। आप सवेरे भी पूजा बलिदान में सम्मिलित हुए थे और अभी पुनः आप आते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और विशेष करके जो इस समय वेदी के सामने आप उपस्थित हैं, प्रभु से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी को जॉन बाप्तिस्ता के माध्यम से, जो कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मनुष्य रहा, मानव में सबसे बड़ा, जैसे स्वयं यीशु ने कहा, और वह अपने को कितना छोटा दीनहीन बनाता है, कहते हुए आज के हम लोग दूसरे पाठ में सुनेंगे, जहाँ लूकास प्रेरित लिख रहे हैं, उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। ऐसे तो वो विनम्र व्यक्ति रहे थे। आइए आज हम उनका इस दुनिया में जन्म पर, इस दुनियाई जन्म पर, वास्तव में कलीसिया सिर्फ 3 जन का ये पर्व मनाती है, दुनियाई जन्म दिवस। साधारणतः हम लोग स्वर्गीय प्रवेश का वो जन्म दिवस मनाते हैं, सभी संतों और शहीदों का स्वर्ग में प्रवेश का। लेकिन ये जो आज हम लोग मना रहे हैं, ये इस दुनियाई जन्म दिवस है। पहला तो है यीशु का ही 25 दिसंबर, और दूसरा है माँ मरियम का 8 सितंबर को मनाते हैं, और ये तीसरा है 24 जून है जो हम बाप्तिस्ता। इसलिए ये तब इतने बड़ी शांति और तब उनके लिए जो विशेष भूमिका अदा करने की, उसके विषय में हम लोग पाठ के बाद में थोड़ी बहुत और हम लोग सुनेंगे। हम अपने पापों के पश्चाताप करें ताकि इस बलिदान को हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, पिता परमेश्वर, और अपनों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने से और कर्तव्य से पाप किया है। मैं दोषी करता हूँ, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Can you take hymn number A73? A73 on page number 31. Page number 31.
महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम करते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम करते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। शक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। तेरा दे पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू भर लेता है, हम पर दया तू करते हैं। जगत का पाप तू भर लेता है, हम पर दया तू करते हैं। पिता के दाए विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत योहन बपतिस्मा को इसलिए भेजा कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए पवित्र प्रजा तैयार करें। तेरी कृपा से सब विश्वासी गण मुक्ति और शांति के पथ पर चलकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करें। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, वाक्य संख्या 1 से 6। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम दिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथों की छाया में छिपा दिया।
उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि उसके लिए इकट्ठा कर लूं। याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Can we take hymn number C69 on page number 105? 105. प्रभु ने मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। हरी हरी घास में मुझे चराता, निर्मल पानी में मुझे। प्रभु ने मेरा चरवाहा, मार्ग पर मुझे चलाता, पाप शाप से मुझे बचाता। धर्म मार्ग पर मुझे चलाता, पाप शाप मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मेरा गरवाहा, अंधकार से मुझे बचाता, अधोलोक से मुझे उठाता। बचाता, अधोलोक से मुझे उठाता। प्रभु है मेरा प्रभु है मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। हरी हरी घास। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो, मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं, जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Can we take in number D17? D17 on page 1 to Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु के चरण में रम जाओ, प्रभु के चरण में रम जाओ। Alleluia, Alleluia, Alleluia। तेरा वचन प्रभु मेरा जीवन, तेरा वचन प्रभु मेरा जीवन, सत्य जीवन तू ही है मेरा। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहान है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए। के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। आदि सम्मानीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, इस संध्या वेला की पूजा विधि में जब हम सम्मिलित होते हैं, यह विशेष महत्व रखता है। जोहन बाप्तिस्ता, जिसके विषय में स्वयं यीशु ने कहा कि वह
मानवों में सबसे बड़ा व्यक्ति रहा, और यह इसीलिए भी कि पुराने व्यवस्थान में सदियों से मुक्तिदाता यीशु मसीह के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। बहुतों ने यीशु के विषय में, मुक्तिदाता के विषय में भविष्यवाणी कही, लेकिन उन सारे लोगों में, नबियों में, महापुरुषों में, राजाओं में, के धर्मी लोगों में यीशु योहन बपतिस्मा को ही महान व्यक्ति कहते हैं। यह इसीलिए भी कि ये अंतिम नबी रहे थे और यीशु के समय में रहे थे, यानी पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान को जोड़ने वाला व्यक्ति रहा। सभी कोई पुराने व्यवस्थान में सभी कोई इस मुक्तिदाता को देखना चाहते थे, उनके लिए ये मौका नहीं मिला, लेकिन सिर्फ यही व्यक्ति योहन बपतिस्मा के लिए ही ये अवसर ईश्वर ने दिया कि उसने अपनी आंखों से, स्वयं अपनी आंखों से बपतिस्मा दाता को बपतिस्मा दिया और उन्हें, अपने शिष्यों को इंगित भी किया कि यही है वह मुक्तिदाता, ईश्वर का मेमना। उसके विषय में बहुत सारी बात कही गई है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि योजना में हम प्रत्येक मनुष्य का, माता पिता भाइयों और बहनों, हम प्रत्येक जन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, हमारी भूमि का महत्वपूर्ण है। माता हमारा अपना अपना महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसको ईश्वर ने हम प्रत्येक जन के लिए लिख दिया है। योहन बपतिस्मा के लिए विशेष दायित्व था, जिसको मैंने आपके सामने रखा, यानी मुक्तिदाता के विषय में लोगों को स्पष्ट तौर पर बताना और उनकी अगुवानी के लिए लोगों को तैयार करना। उपर्युक्त इन सारे कार्यों में योहन की भूमिका अहम रही है। वे सभी नबियों में महान रहे, सभी मानवों में भी विशिष्ट रहे। पुराने और नए व्यवस्थान को उन्होंने जोड़ा, जैसे मैंने कहा, वो अंतिम नबी रहे जिन्होंने स्वयं मुक्तिदाता को देखा, इंगित भी किया। इन सब कारणों से ये संत और शहीद नबी महान कहे जा रहे हैं और उन्हीं का जन्म दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आज के तीनों पाठ उनकी महानता को ही हमारे सामने रखते हैं। माता के गर्भ से उन्हें ईश्वर ने अपना सेवक बना लिया। उनकी वाणी को ईश्वर ने तीक्ष्ण, नुकीला तीर, तेज तलवार बना दिया। कर्मठ और साहसी संदेशवाहक हुए बने। विभिन्न जाति और विभिन्न राष्ट्रों को एकत्रित करने वाला यही नबी, यही व्यक्ति हमारा मुक्ति विधान को पृथ्वी के सीमांतों तक पहुंचाने वाला काम इन्हीं के लिए ईश्वर ने सौंप दिया। यह सब होते हुए भी यह व्यक्ति कितना दीनहीन, विनम्र, निष्कपट, उदार, आज्ञाकारी, कर्मठ सेवक बना। उन्होंने यीशु के विषय में, उस महान मुक्तिदाता के विषय में भी कहा, वो इतने बड़े हैं कि वो बढ़े और मैं घटूं। उनके चरणों के जूते उड़ने के
योग्य भी मैं नहीं हूँ, और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा महान व्यक्ति बने। प्रेरित लूकास अपने सुसमाचार और प्रेरित चरित्र में भी लिखते हैं, उनका जन्म आनंद और प्रशंसा का शुभ संदेश बना, उनका यीशु का और स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा का भी लूकास प्रेरित तो यही कहते हैं। उनका जन्म, वो जन्म लिए तो अड़ोस पड़ोस के इर्द गिर्द के और विशेष करके माता पिता जकरियस और एलिजाबेथ के लिए अपार आनंद और ईश्वर को प्रशंसा देने का ही शुभ संदेश बना। सुसमाचार में आपने सुना अध्याय 1 के 14 नंबर में स्वर्गदूत ने जकरियस को, जो कि याजक थे, मंदिर में प्रवेश किया और उनके लिए दर्शन में स्वर्गदूत ने कहा, आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे, बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। अध्याय 1 के 44 नंबर में एलिजाबेथ मरियम को कहती है, जब मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है, और क्या हुआ, एलिजाबेथ के जो गर्भ था, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। नंबर 58 में, 1:58 में, खतने के लिए बड़ी भीड़ एलिजाबेथ और जकरियस के घर में एकत्रित थी, और उस अवसर पर पड़ोसियों और संबंधियों ने एलिजाबेथ के साथ आनंद मनाया। क्यों? क्योंकि वह बुजुर्ग थी, बूढ़ी हो चली थी, फिर भी उनके लिए ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की थी, एक संतान, एक सुपुत्र दे करके, जो कि आनंद का संदेश था। 1:64 नंबर में वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा, और वह कौन? जकरियस, जो कि गूंगा बन गया था। और क्यों? क्योंकि उसने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास नहीं किया था। वह, उसके जिह्वा तो खुल गए, क्योंकि उसने ईश्वर की योजना में समर्थन दिया, आज्ञाकारी बना, विश्वासी बना, और वह ईश्वर की लंबी लंबी बड़ाई और प्रशंसा का गीत गाता है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर इत्यादि। 65 नंबर में पहाड़ी प्रदेश में सब बातें, ये सब बातें चारों ओर खुशी की लहर की भांति फैल गई। तो इस तरह से लूकास प्रेरित पूर्णतः इस जन्म को और पूरे अपने सुसमाचार को वो आनंद और स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा का शुभ संदेश ही बताते हैं। प्रभु का असल भक्त पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदानों और आशीर्वाद से विभूषित होकर प्रभु के कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करते हैं। और जब हम ईश्वर के साथ सहयोग करते हैं तो वे हमें भी भरपूर आशीर्वाद देते हैं, जैसे आपने देखा जकरियस के लिए और स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा के लिए, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति थे, ईश्वर की बातों पर उसने विश्वास किया। इस तरह संत लूकास आज के इस पर्व को आनंद और प्रशंसा का शुभ संदेश बताते हैं। आइए हम भी ईश्वर में यूहन्ना बपतिस्मा के समान
जकियस के समान अपनी आस्था अपना विश्वास बनाए रखें ताकि ईश्वर हमें भी आशीर्वाद दे, हमें हर तरह के कृपादान से परिपूर्ण कर दे। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ईश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए हमारी मरियम से जन्मे पोंतियुस पिलातुस के समय उठाया उस पर झुका गया मर गया मारा गया इसलिए पुत्र मृत्युओं में विजयी उठा स्वर्ग गया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विराजमान है भगवान से जीवितों और धर्मियों का संबंध पापों की क्षमा देव के पुनरुत्थान और अनुग्रह में विश्वास करता हूँ आमीन। I, Sister Marie Jacinta Michael, Sister Kulandai Emma Joseph, Sister Nisharani Madatani, Sister Elizabeth Thomas, in the presence of the Most Holy Trinity, of the Most Holy Virgin Mary, of Saint John the Baptist, and all the heavenly court, renew to God my vows of poverty, chastity, and obedience in the congregation of Sisters of Saint John the Baptist, according to his constitutions. I humbly beg the merciful God to accept my vows through the intercession of our holy patrons, and to confirm in me the good that he has designed to work in me. God chose John to announce the kingdom of Christ to all. Lord, we ask you to bless our Holy Mother Church, our Holy Father Pope Francis, cardinals, bishops, priests, and religious. Lord, that they may preach, serve, and witness like John bravely by their life. Protect and prevail all of them from worldly things and life-threatening pandemic. May they accept in faith all that you send in their life and care for those entrusted to them. For this we pray to you, O Lord. Lord, hear our prayers. Lord, you have given man authority over the work of your hands. We plead you to bless our motherland India and its leaders in all spheres of administration of the country. Grant them some of your wisdom and concern to lead your people to see the bright days in life in the midst of deadly COVID-19. Protect them from all the evil. Make their hands like that of yours to wipe away the tears of every citizen, invariably those who are under their care. For this we pray to you, Lord. Lord, hear our prayers. Father, your will is that every man should accept and answer your call. We ask you to take to your fatherly care our congregation, province, our community, and our mission. Grant us the grace to live in accord with your will as our founder, Saint Alfonso Maria Cusco, had fulfilled. Set our minds and lives on your kingdom and your justice before all other things. Thus we may serve you and your people through our charism. For this we pray to you, Lord. Lord, hear our prayers. God leads forward in love towards the joyful life when we enter his rest. Lord, we pray to you for all our brethren affected by the COVID-19 and other various ailments. Bless all those who rendered their service to this suffering humanity.
bless and heal them. Help the sick and suffering to share their sufferings with your passion. Lord, may they know in your fullness of life and love. For this, we pray to you, Lord. Lord, hear our prayers. Lord, we bring to your motherly care all the widows, orphans, people in prisons, less fortunate, and all downtrodden in the society. Lord, let your merciful eyes fall on them and comfort them, your loving heart. Let them feel your divine touch in their lives, thus they may receive new life in you and through you. For this, we pray to you, Lord. Lord, hear our prayers. Lord, we ask you to bless our loving shepherd, Bishop Patras Minch, and Father Gabriel, and fathers. Be near to them and strengthen them physically and spiritually at all times. We do pray to bless all of us gathered around your table. We know you know all our needs and fulfill our heart's desires. Give us courage when things go wrong with hope in your promises and with love of your will. Deepen our commitment in our religious life. For this we pray to you, O Lord. Lord, hear our prayers. Dear Lord Jesus, together with the Montfort brothers who have started Education Institute and the Sisters of St. John the Baptist are cooperating, coordinating with them and working and teaching so many little ones, the youngsters, the education and the faith. Lord, bless these sisters that in their mission and vocation they may fruitfully, faithfully perform their duties and responsibilities as you have mission, and in it they may have full satisfaction. For this we pray. Lord, hear our prayers. Loving Jesus, these were the few intentions that we offer this evening. We offer and bring many more devotees, faithful people around this table, and with many intentions. Lord, bless all of them, and so that they may be your true followers. We ask this through Christ our Lord. Amen. Can we take hymn number? Hymn number E66. E66 on page number 160. 160. तुझे चढ़ाऊं यीशु भगवान, जीवन अपना तुझसे मिलता यीशु भगवान, यीशु भगवान। देख तुझे मैं चढ़ाता बसाता हूँ, भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। हर जन तुझसे जीवन पावे, गावे तेरा जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता यीशु भगवान, यीशु भगवान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। नाम की स्तुति के लिए और प्रभु, हम संत योहन का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हुए अपनी भेंट तुझे अर्पित कर रहे हैं। इन्होंने संसार के मुक्तिदाता के आगमन की को न केवल पूर्व सूचना दी, किंतु उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया, जो युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत योहन के द्वारा तेरे महान कार्यों का गुणगान करते हैं। तूने मानव पुत्र पुत्रियों में योहन को विशेष सम्मान से विभूषित किया है। ये अपने जन्म के पूर्व ही मुक्तिदाता का आगमन जानकर आनंद से उछल पड़े और अपने जन्म के द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। नबियों में से एक इन्होंने ही ईश्वर के नेम ने मुक्तिदाता यीशु को इंगित किया। जलधारा में घोषित होने वालों के इन्होंने बपतिस्मा के प्रणेता को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर यीशु क्रिस्त के प्रति अपना सर्वोत्तम दान प्रदान किया। इसलिए हम स्वर्गदूतों से मिलकर इस कृति पर तेरी प्रताप की महिमा गाते हैं। And we take in number A76 on page 32. Page 32. पावन
में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह बार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के दिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य परम पिता, यह मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मार्थ पत्रस्वीन और सूर्यास्पों के साथ विश्व भर भर अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में से बना देंगे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक उतर चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम वे अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माँ का धन्य महिमा प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समर्पित का महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Kindly take hymn number A65 on page number 27. तेरा नाम धन्य हो।
प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। के साथ परस्पर प्रेम रखिए। ईश्वर के बलित में तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेल से देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु Can we take team number F75? F75 on page 208. 208. दया सागर मेरे प्रभु महान, सारी सृष्टि में गूंज तेरा नाम। हे दया सागर मेरे प्रभु महान,
दिया। तूने मेरे घर गुनाहों को माफ किया। प्रभु सदा मैं तेरा नाम गाऊं, सदा मैं तेरा नाम। मेरे दया सागर मेरे प्रभु महान, सारे सृष्टि में तुझे तेरा नाम। तूने मुझे अनमोल दान दिए। तूने मुझे अनमोल दान दिए। तूने मेरे लिए मुक्ति विधान प्रदान किए। गाऊं सदा मैं तेरा नाम, गाऊं सदा मैं तेरा नाम। मेरे दया सागर मेरे प्रभु महान, सारी सृष्टि में तुझे तेरा नाम। तूने मुझे संजीवन जल पिलाया। तूने मुझे संजीवन जल पिलाया। मेरे जीवन में प्रेम पार कर दिया। गाऊं सदा मैं तेरा नाम, गाऊं सदा मैं तेरा नाम। मेरे दया सागर मेरे प्रभु महान, सारी सृष्टि में तुझे तेरा नाम। Christ, the divine God, King of the ages and Creator of all things, we thank you for all the good gifts you have given to us, and especially for the communion of your pure and life-giving mysteries. Lord, thank you for the presence of each one of us gathered here. Bless each one of us, Lord, with your divine love. Thank you, Lord, for the presence of our Bishop, Patras Minj, and all the fathers and our dear Montfort brothers. Dear fathers and brothers, thank you for joining us for the Eucharistic celebration. We ask God's special blessings to each one of us present here. Thank you, Lord, for the gift of our patron saint, Saint John the Baptist, who lived a simple life and prepared the way for Christ. Lord, fill us with your wisdom and knowledge to fulfill our mission which you have entrusted to us. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Kindly take hymn number G25 on page 231. 231. प्रभु तुमको मिले मुझे वरदान,
नहीं भगवान, कैसे करूं तुम्हारा कद्र नहीं भगवान, खड़ा हूँ बस तेरे ही द्वार। धन्यवाद प्रभु तुमको, जब जब तुमको याद किया मैं, हर दम मुझ में जमा गया तुम, जब जब तुमको याद गया मैं, हर दम मुझ में जमा गया तुम। दिया न दूर मुझे भगवान, धन्यवाद प्रभु तुमको। क्यों करे इतना प्यार किया, बेटे जैसा दुलार किया, क्यों करे इतना प्यार किया, बेटे जैसा दुलार किया। भला ही क्या मुझ में भगवान, धन्यवाद प्रभु तुमको। ये भी बिना वो भी बिना, किया न कभी पापों